Hey, and welcome back to another स्टोरी वीडियो। आज हम रीड करने वाले हैं कि भाई वो चैप्टर फोर्थ का जो फोर्थ क्योर है ना, 7 क्योर्स ऑफ द ऑफ ए फॉर लेन पॉज, उसमें से फोर्थ क्योर का आज स्टडी करेंगे। लगभग 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। एंड अभी सुबह के चार चार बज रहे हैं और मैं यहाँ पर ऐसे ही आक्रोश में जा रहा था, तो मुझे क्या, मैं ऑनलाइन पे था तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो उससे अच्छा तो भाई थोड़ा मैं इसमें मेरा वीडियो तो आज रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि भाई अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा तो भाई बाद में वो टाइम नहीं है। आज मेरा फ्रेशर्स ये तो आज फर्स्ट ईयर का वेलकम कर रहे हैं, तो बाद में नहीं हो पाएगा शूटिंग, तो अभी करता हूँ रात में जब भी उठा। और अभी मन पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है। और आज आज मैं किस गंदी चीज़ में गया मैं। ओके, हो सकता है गंदी, वो छाड़ो, हो गया, वो बात करने के लायक भी नहीं है। तो लास्ट में त्योहार की ओर में किया था कि भाई आपको अपनी गोल्ड जितने भी आपके पैसा है उसे आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। मल्टीप्लाई करना सीखो। अब सपोज आपके पास होगा 20,000, 20,000 से में से आपको 10,000 सेविंग्स में रखना है, तो और 20,000 और जो 10,000 आपको अपनी एक्सपेंशंस पे का लगा देना है जहाँ पर आपके काम है। तो जब अब वो जो बचत की हुई पैसे बाद में आपको रिटर्न में देगी, और जो भी आप बचाओगे उस पैसे को आप आप उसे क्या बोल दो उसे रे उसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि भाई पैसे रखने से ही पैसा बढ़ती नहीं है, उससे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है, तभी वो उसका उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी ना, है कि नहीं। तो पहली आती है हमारी जो वो फोर्थ की ओर है कि गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। आप इस वर्ड में है, इस सेंटेंस में से आपको समझ में क्या रहा होगा कि भाई गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस, आपको जो लॉस हुए उसमें से आपको गार्ड करना है, गार्ड होना है उसका। ऐसे ही कुछ होगा, देखते हैं। Misfortune loves a shining mark. Gold in a man's purse must be guarded with firmness, else it be lost. Thus, it is wise that we must first secure small amounts and learn to protect them before gods entrust us with larger. So spoke Archer upon the fourth day to his class. Every owner of gold is tempted by opportunities whereby it would seem that he could make a large sums by its investment in the most plausible projects. Often friends and relatives are eagerly entering such investments and urge him to follow. The first principle of investment is security. For the principal, is it wise to be intrigued by larger earnings when the principal may be lost? I say not. The penalty of risk is favorable loss. Study carefully before parting with the treasure. Each assurance that it may be safely reclaimed. Be not misled by thin on romantic desires to make wealth rapidly. Before the loan into my men assure themselves uh, of his ability to repay and his reputation doing so, that the mayest not wittingly
be making him a present of the hard-earned treasure before thou entrust us an investment in any field. Acquaint this self with the danger which may beset it. My own first investment was the tragedy to me that the time the guided savings of a year I did entrust to a brickmaker named Azmore, who was traveling over the far seas, and Tyre agreed to buy for me the rare jewelries of the Phoenicians. This week would sell upon his return and divide the profits. The Phoenicians were sound rails and sold him beads of glass. My treasure was lost. Today, my training would show to me at once the folly of entrusting a brickmaker to buy jewelries. Therefore, do I advise from the wise wisdom of my experience, be not too confident of thin own wisdom in entrusting the treasures to the possible pitfalls of the investments. Better by far a consult the wisdom of the experienced in handling money for profit. Such advice is freely given for asking and may readily possesses a value equal in gold. To the sum thou consideration investing in truth, such each its actual value or if it saved the from loss, loss. This then is the fourth cure for a lean force and of great importance if it prevent the force from being emptied. Once it has become well filled, guard by treasure from loss by investing only where the principal is here, where it may be reclaimed if desirable, where the will not fail to collect a fair rental. Consult with wisdom, secure the advice too of those experienced in the profitable handling of gold. Let their wisdom protect the treasure from unsafe investments. ओके, ये रहा आज का चैप्टर फोर्थ के बारे में। इसमें बताया गया कि भाई आप ना, सपोज मुझे ज्वेलरीज खरीदना है, तो मैं ज्वेलरीज के बारे में एडवाइस जो मैं जो लेना चाहता हूँ, उस एडवाइस मैं किससे लेना लूँगा। जब मुझे ज्वेलरीज खरीदना है तो मुझे किससे एडवाइस लेना चाहिए, एक ब्रिक मेकर से या एक शॉपकीपर से जो कि एक नॉर्मल वो सामान वगैरह ये करता है, सेल करता है, उससे नहीं। बेस्ट एडवाइस जो कि पहले कर चुका है उससे लेना ही बेस्ट होगा, क्योंकि जो बंदा सोने के ज्वेलरीज के बारे में पता ही नहीं, उसे कुछ आइडिया ही नहीं, वो आपको कैसे एडवाइस दे सकता है, ये सजेशन भी दे सकता है। वो जो किसी को भी देखा होगा अपनी सराउंड्स में, तो उसको जज करके तुम्हें वो आइडियाज दे प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होता। आपको सपोज ज्वेलरीज के खरीदना है तो भाई ज्वेलरीज के बारे में ज्वेलरीज शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा। जो ज्वेलरीज शॉप करता है, खरीदता है और बेचता है, उसको आपको लेना है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ यार। मेरे पापा ना, हमारे जो उनके टाइम पे हमारे गांव पे तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पापा थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो 10 भी ख़त्म किए थे, प्लस टू भी ख़त्म किए थे। तो
जब भी कोई एग्ज़ाम होता था ना, मेरे पापा को कोई बुला देता कि भाई मेरे लिए एक एग्ज़ाम दे देना। मेरे पापा ना बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम दिए हैं और उनको पास भी करवाए हैं। वो उस ज़माने में था, उनके ज़माने में। लेकिन अभी क्या है, अभी वो सिक्योरिटी बहुत अ, हाई हो गई, तो आप सब चेकिंग कर रहे हैं अभी। लेकिन जब मेरे पापा के टाइम पे ना चेकिंग नहीं हो रहा था, वहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नाम ही काफ़ी होता, नाम देकर हाँ, मैं ये हूँ। फ़ोटो दिया नहीं जाता था, तो वो पहचान में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मेरे पापा ने ऐसे करके बहुत सारा एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन किसी बंदे का पास किया है बहुत लोग। ऐसा होता है। इस मेरे कहने का रीज़न है कि मेरे पापा को जो बंदे लोग जो भी एग्ज़ाम था देना, उन लोगों ने क्यों बुलाया उन्हें, मेरे पापा को क्यों? क्योंकि मेरे पापा को एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने उससे पढ़ चुके हैं, तो भाई वो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर देंगे। ऐसे ही सपोज़ तुमको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल। सपोज़ तुम्हें क्या बोलते हैं उसे? तुम्हें अ, हाँ, सपोज़ तुम्हें एक मॉडलर बनना है, तो एक क्या बनना है? एक मॉडलर बनना है। तो आप क्या करोगे? किसी एक मॉडलर को आप पकड़ोगे या किसी एक जो मॉडलिंग नहीं कर रहे, मॉडलिंग से बहुत ज़्यादा दूर है, उससे आप कुछ आइडियाज़ माँगोगे कि भाई मॉडलिंग कैसे करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, जो मॉडलिंग कर चुका होगा ना, वो ही जानता होगा कि मॉडलिंग में क्या-क्या स्ट्रगल्स आती है। इसके स्टेप बाद इसके बाद क्या स्टेप्स आने वाले हैं, वो ही जानता है। तो आपको ना जो जिस चीज़ में माहिर है, उसी को उसी चीज़ के बारे में पूछना ही और उसको उसी चीज़ के बारे में एडवाइस माँगना बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। यही चीज़ इस 4th की ओर में आपको समझाने के लिए कोशिश किया गया है और ये बताया गया है कि भई एक लीन कोर्स के लिए आपको पैसा को बचाना पड़ेगा। फर्स्ट कंट्रोल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपको पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे 4 नंबर की ओर में हमारी आती है आज की कि जो भी आप पैसे के रिलेटेड लेते हैं, तो भाई जो बंदा पैसे के रिलेटेड में थोड़ा प्रॉफिटेबल कर चुका है और जो बंदा प्रॉफिटेबल ला चुका है, उससे आप थोड़ा एडवाइस ले सकते हैं। और फर्स्ट की ओर थी कि भाई हाँ, सेविंग्स करें। पहली चीज़ तो सेविंग्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितनी भी सैलरी ले रहे हो ना अपनी महीने में से सैलरी से, और उसमें से 1/10 या 1/8 आपको बचा के रखना है, तो वो भी अपनी अलग बना लेते हो, अकाउंट बना लेते हो तो सही है। ओके, आज इतना था, वैसा अच्छा लगा यार। हाँ, मिलते हैं। तब तक बाय। एंड मैं सोच रहा था कुछ एक यूनिक बनाने के लिए भाई, कुछ नया चीज़ मुझे कुछ न्यू ट्राई करने के लिए अच्छा लग रहा है। तो मेरे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो मैथ के लेकर मैं कुछ करना चाहूँगा। मैथ के ऊपर मेरी टॉपिक होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसके 5th की ओर को भी रीड करेंगे। उसके साथ साथ मैं एक वीडियो भी एक मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, आज ही रिकॉर्ड कर दूँगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय, मिलते हैं।